Hi guys, so this is our second video of doubt solving series. Okay, now in this video I am going to solve doubts of Hari Krishnan and Anil Masin. Now Hari Krishnan has asked a very interesting doubt and a conceptual doubt. Okay, so he says that why items like prepaid rent are given below trial balance. ओके कि ये आइटम्स मैम ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों दिए जाते हैं इफ द अकाउंटेंट नोज दैट द रेंट इज प्रीपेड then while recording the transaction itself why does not he record the prepaid rent, why does this item has to appear in the below the trial balance in adjustment. So I'll tell you this. See, now if I am accountant, okay, and it is my duty to record the transactions. Now I have paid total amount towards rent as 1500. Suppose out of this 1200 is for current year and let's say 300 is prepaid. Now if as an accountant I know that 300 is prepaid, 1200 is for current year, I will pass the entry rent account debit all expenses and losses 1200. Prepaid rent is representative personal account. It shows that 300 is not my expense but rather for rupees 300 किसी से service आनी है. So I will debit 300 and I'll credit to bank 1500, correct? When I do so, if I pass this entry, then my trial balance, my TB, will have rent account. It will also have prepaid rent account. And when I will prepare final accounts, I will write this rent account on P&L debit side. I'll write this prepaid rent in my balance sheet. Okay, now the transaction is correctly recorded. There is no need of adjustment. However, what happens is, if as an accountant, I do not only know that my basics are not clear. Okay, so see there can be multiple reasons. Like while recording the transaction, I did not know actually that rent is to be separated, prepaid rent is to be separated. ये मैंने अलग अलग करना चाहिए. और मुझसे गलती हो गई मतलब मैंने स्किप कर दिया ये. I overlooked it. I did not understand that. I actually did not even see the dates. मैंने dates correctly नहीं देखे और मैंने ये record नहीं किया. तो उस केस में अगर आपके अकाउंटेंट ने ऐसा स्प्लिट नहीं किया है, आई टोटली अग्री कि आइडियल सिचुएशन में उसने ये करना चाहिए. लेकिन अगर आपके अकाउंटेंट को ये प्रिंसिपल ही नहीं पता है कि रेंट और प्रीपेड को स्प्लिट करना चाहिए या उससे ये गलती हो गई है, सो इन दैट केस इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू नो कि ऐसे सिचुएशन में यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यू शुड नो कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट हमने सिर्फ करेक्ट करंट ईयर का खर्चा लेना चाहिए और प्रीपेड स्प्लिट कर देना चाहिए. एंड इफ योर अकाउंटेंट हैज नॉट डन दैट बिफोर, हाउ यू विल डू दैट. अगर अकाउंटेंट ने पहले ये चीज नहीं की है, उसने डायरेक्टली एंट्री मार दी है रेंट अकाउंट डेबिट to bank account, this can happen if your accountant is not actually very much aware of this concept. So 1500, then in that case your trial balance will show rent account only of 1500 and later on in order to calculate correct profit निकालने के लिए आपको जो इस साल का खर्चा है ही नहीं वो निकालना पड़ेगा. So why does it come in adjustment? So that you know that, see, if accountant passes it correctly, that is correct, but we can't rely on that, right? So accountant wants, so ICI wants you to understand this. So if accountant does not do that correctly, then how are you aware that the rent and prepaid needs to be split and how it is to be done? So that is why it comes in adjustment. So I hope I have cleared your doubt. Okay. Now the next doubt I am going to deal in this video is of Anil Masin, and he has asked me again very nice doubt, conceptual doubt कि मैम मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है. ओके, सो हम सीखते हैं मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट के साथ ना दो तीन कंसेप्ट लिंक्ड होते हैं. सो देयर आर 2-3 कंसेप्ट्स व्हिच आर लिंक्ड हियर, दैट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, accrual and matching. ठीक है.
सो सबसे पहले पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आपने वो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं, आपने उसके बेसिस पे ये निकालना चाहिए कि वो पीरियड के लिए हैज़ द बिजनेस अर्नड इनकम और इट हैज़ इनकर्ड लॉसेस। ओके, सो हमें एक पीरियड के लिए बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है दैट वी नीड टू कैलकुलेट, वेदर बिजनेस इज इन प्रॉफिट और लॉसेस, ये हमें निकालना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली हम ये कितने पीरियड के लिए करते हैं? एक साल के लिए। हम देखते हैं एक साल के लिए बिजनेस का क्या सिचुएशन है, परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, अब अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल बोलता है इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, ओके, एंड एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड irrespective when the cash is received or paid। तो अक्रूवल बोलता है कि अगर आपने उस साल में वो इनकम कमा ली है, कमा ली कब बोलेंगे? जब आपने आपकी ड्यूटी कर ली है, तो वो उस साल में आपकी इनकम है। आपको पैसा कैश कभी भी बाद में मिले, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज जिस साल आपने वो इनकम कमाई है उस साल में वो पकड़नी चाहिए। सो इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, करेक्ट। अब हम मैचिंग पे आते हैं। सी, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए? मैंने अक्रूवल यूज करके वो साल भर में जितनी भी इनकम कमाई है वो पहले रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। सो मैंने बोलना चाहिए कि यार मैंने साल भर में ये सारा काम जो मेरा था, मेरी ड्यूटी खत्म कर ली है, ये पैसा मैंने कमाया हुआ है, तो ये मेरी इनकम है। ओके, अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए उस पीरियड का ये इनकम कमाने के लिए आपने जो खर्चे किए हुए हैं आपने वो रिकॉर्ड करने चाहिए। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस यू शुड मैच योर एक्सपेंसेस विथ इनकम। सो यहाँ पे जो भी मेरे एक्सपेंसेस आएंगे वो मैंने ये इनकम के साथ मैच करने चाहिए। उस पीरियड में मैंने जो भी इनकम कमाई है वो इनकम कमाने के लिए जितने भी खर्चे हैं, बस वही इनकम कमाने के लिए जितने खर्चे मैंने किए हैं वो मैंने मैच करने चाहिए। तब जाके मेरा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस आएगा कि इतनी इनकम कमाई, इनके लिए ही बस कितना एक्सपेंस किया है मैंने, एंड देन करेक्ट प्रॉफिट या लॉस। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या है। बताती हूँ मैं। ये देखो, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही क्वेश्चन है। मिस्टर पीके स्टार्टेड क्लॉथ बिजनेस, ठीक है। ही परचेस्ड 10,000 पीसेस गारमेंट एट ₹100 पर पीस, ओके, ठीक है। समरी बनाते जाते हैं। सपोज ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ये लिखते जाती हूँ कि मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो वहाँ यहाँ पे 2 परचेजेस करके आएंगे। कितना खरीदे हैं गुड्स? देखो 10,000 पीसेस इंटू 100, तो यहाँ पे मेरा 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, एंड वी सोल्ड 8,000 पीसेस, मैंने सिर्फ 8,000 पीसेस सेल किए हैं। कितने में? 150 रुपीज पर पीस। तो क्या मैं बोलूँ मेरा सेल्स आने वाला है? बाय सेल्स 150 इंटू 8,000 दैट इज 12 लाख। ओके, आगे क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 19। सो ये एक साल के पीरियड में ये 10,000 पीसेस आपने खरीदे, आप उसमें से 8,000 बेच पाए, ठीक है। ही पेड शॉप रेंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ फॉर 11 मंथ्स, 3,000 पर मंथ रेंट पे किया 11 महीनों के लिए। एंड ही हैज पेड 8 लाख टू द सप्लायर्स ऑफ गारमेंट्स, तो जिनसे माल खरीदा, एक्चुअली हमने 10 लाख का माल खरीदा है, लेकिन मैंने उनको पे कितने किए हैं? 8 लाख रुपए। एंड कस्टमर से मुझे कितने मिले हैं? 10 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, जबकि मैंने कस्टमर को माल कितने का बेचा हुआ है? सेल कितने का है? 12 लाख का है। अब अगर मुझे करेक्टली प्रॉफिट निकालना है तो पूरे सारे कंसेप्ट्स एक बार क्विकली देखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी के हिसाब से मैं इस साल भर में, ये एक साल के पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मैं निकालूंगी। ओके, उसके बाद भले मुझे कस्टमर से 10 लाख रुपए ही मिले हो, लेकिन अगर मैंने 8,000 पीस में बेच चुकी हूँ
तो इसका मतलब मेरी कमाई 8000 इंटू 150 हो चुकी है 12 लाख। कस्टमर मुझे जो दे रहा है, हम कैश सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल, तो अक्रूवल के हिसाब से मेरी कमाई हो चुकी है 12 लाख की। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए ये 12 लाख की इनकम कमाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया मैंने देखना चाहिए। तो तुम ही देखो, मैंने बेचे हुए हैं 8000 पीसेस, लेकिन मेरा फिलहाल खर्चा जो दिख रहा है परचेजेस, वो कितने पीसेस का दिख रहा है? 10,000 पीसेस का दिख रहा है। क्या ये मैच हो रहा है? अगर 8,000 का माल बेचा हुआ है तो वो 8,000 के लिए कितना खर्चा किया है वो मैच करना चाहिए ना, तो ही करेक्ट प्रॉफिट आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो 2,000 पीसेस है जो मैं बेच ही नहीं पाई हूँ, वो इस साल का कैसे खर्चा हुआ फिर, तो वो मुझे निकाल देना चाहिए। इसके लिए ही तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है। मैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक जब लिख दूंगी, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो 2,000 आइटम्स है जो बिके ही नहीं गए उनका खर्चा मैं निकाल दूंगी। कितना आएगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 2 लाख। ओके, सो अभी इफ आई से ये 10 लाख और ये 2 लाख मिलके टोटल क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेचे बराबर से मैंने इनकम के साथ, जो इनकम मैंने कमाई, ओके, उसके साथ एक्सपेंस मैच कर दिया। सो 10 लाख माइनस 2 लाख मतलब 8 लाख एक्चुअली जो गुड्स मैंने बेचे हैं उनका खर्चा है। क्या मैंने और कुछ खर्चा किया हुआ है क्या? तो मैंने रेंट पे किया हुआ है, मैंने रेंट पे किया है 3,000 पर मंथ का, ऐसे 11 महीने के लिए मैंने पे किया है। लेकिन अगर मैं कमाई पूरे 1 साल की ले रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये कमाने के लिए पूरे 1 साल लगाया हुआ है, तो ये कमाने के साथ वापस एक्सपेंस मैच होना चाहिए। ओके, तो ये एक्सपेंस मैच कैसे होगा? मैंने रेंट भी तो पूरे 12 महीने का लेना चाहिए 1 साल का। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैचिंग का मतलब यही होता है कि जितनी तुमने कमाई की है वो कमाने के लिए जो तुम्हारा खर्चा है वो मैच करना है। तो वो कमाने के लिए 12 महीने का रेंट लेना चाहिए, विच इज टू रेंट 3,000 इंटू 12 दैट इज 36,000। ओके, इस हिसाब से क्या हो गया, मेरा इनकम और बस वही इनकम कमाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है वो मैच हो गया। अब मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा देखो, 12 लाख। 12 लाख कमाने के लिए मेरे एक्सपेंसेस क्या हुए, माइनस 8 लाख। कैसे आया ये 8 लाख? दिस 10 लाख माइनस 2 लाख, ओके, एंड माइनस रेंट ऑफ 36,000. So my profit actually, if you see, it is 3,64,000. So this is matching concept. चलो, so I hope ये डाउट भी क्लियर हो गया. See you with next video soon.